Success Mantra. We shape future. Hello everyone, welcome you all in the yet another series of geography in which we will be targeting most of the upcoming examinations, which shall include DULLB, which is upcoming, NLSAT and MHSET, CUET UG and PG. So by this, throughout this session, we'll try to cover like 44 to 45 question of geography specific, whether it is Indian geography, Indian physical geography, Indian political geography, world geography, and each and every aspect we'll try to touch by these 44 question to each and every segment of geography, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो you'll feel comfortable, and most of the questions, or I think all the questions, have been framed in such a manner that it shall tally almost similar to the past year paper, so that if you practice these questions even without seeing the video, and then you see the video for understanding, like कि कोई concept समझ में नहीं आया, इसमें और addition की ज़रूरत है, it will help you, it will give you an insight about the examination कि what exactly you are going to suffer in the examination if you haven't studied yet, right? And for those who haven't studied yet the geography part or the static part, please start studying. Polity seasons are out, polity part 1 and polity 2, history is out, geography is final, so your static is almost complete. Now you are left with the current affairs part, which is done already, and in the current affairs part try to link with the organizations and all. Okay, you cannot do the static part in the organization only. Organizations, there are a lot of organizations, but they will ask only those organizations which are in news, so you should be focusing on that segment only. And through this video we'll try to analyze the geography segment, what kind of question earlier have been asked, what kind of question may be asked in the upcoming examinations, because if we talk about the CUET PG DULLB, 1 to 2 questions will be of geography, 2 to 3 max. You are not getting more than 3 questions, because they have a very fine bracket of 15 to 18 questions, so you can expect 2 to 3 questions. In MHSET you can expect more, in CUET UG you can expect more questions, so please be ready and don't miss a chance to get it out, right? क्योंकि 3 questions is equals to 12 marks and 12 marks is something, my friend, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. बेसिकली ज्योग्राफी की सेगमेंट की बात करें, पहले एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि ज्योग्राफी के सेगमेंट में कौन कौन से एस्पेक्ट से क्वेश्चन आते हैं. इफ वी ट्राई टू क्रिएट अ सेगमेंट ऑफ ज्योग्राफी, देन इट इज वर्ल्ड ज्योग्राफी. फर्स्ट ऑफ ऑल, in world geography try to read maps. if you have a understanding about map कि कौन सी कंट्री कहाँ है, अगर तुम्हें देश विदेश का पता होगा, you will be excellent. अगर रटने बैठोगे तो कभी नहीं होगा, it's my guarantee. next is Indian geography, physical and political, right? and the last one is the universe, the planets and planetary system. इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए. सो इन 3 सेगमेंट्स पे आपका ज्योग्राफी जो है वो डिफाइन किया जाता है. वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब जैसे इंडियन ज्योग्राफी की जब बात करोगे तो हम लेक्स एंड रिवर्स एंड माउंटेन्स पे फोकस करेंगे. इन वर्ल्ड ज्योग्राफी बात करोगे, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, ओशंस, पैसेजेस आप इंडियन ज्योग्राफी में भी कवर करते हो. एंड इन वर्ल्ड ज्योग्राफी देयर इज स्ट्रेट्स आल्सो, दीज आर इंपॉर्टेंट. एक स्ट्रेट इंडियन ज्योग्राफी में भी, तो उसको हम डील करेंगे. इससे बाहर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता भी नहीं, ना उससे इंटरेस्टेड है, ना आपको पढ़ना चाहिए, राइट? अब इतने पार्ट को कवर करना है इतने कम टाइम में. इफ़ यू आर स्टडिंग टुडे ओनली, तो ट्राई करो कि आप क्वेश्चंस के थ्रू करो, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को कवर कर पाओ और आप रेस्ट ऑफ द चीज़ों पर प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे. एंड दोज हु हैव सॉल्व्ड द पीपीटी विल बी इन द टेलीग्राम चैनल, who have solved the PPT and still not trying to see the video, please watch it, because it's a simple there is a simple answer to it. I am not telling you the answers only कि इसका ये आंसर, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ऐसा नहीं चलेगा. ऐसा तो कोई भी कर लेगा, उससे अच्छा हम पीपीटी और आंसर की डाल देते, वैसे भी कर लेते. विल ट्राई टू डिस्कस. हर एक ऑप्शन का एक अपना मतलब है और किसी इंटेंशन से उस ऑप्शन को डाला गया, तो उसको उसी हिसाब से वेरीफाई या फिर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, right? So let's start. The planet nearest to the sun is Mercury, है ना? Mercury is the planet which is nearest to the sun. The answer of first is A. Second, the asteroid belt is found between which of the following? Asteroid belts are basically the belt of asteroids. यही है definition.
ठीक है, विच इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कहां पर मिलेगा एस्टेरॉयड बेल्ट? अगर आपको एक भी इसमें ऑप्शन पता है तो आप कर लोगे, दैट इज मार्स। मार्स भी पाया जाता है, मार्स अगर पता है, अर्थ के पास एस्टेरॉयड बेल्ट नहीं है, तो फर्स्ट वन इज एलिमिनेटेड, नो, मार्स एंड जुपिटर इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्लैनेट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन? तो लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन इज नेपच्यून, राइट, नेपच्यून इज द आंसर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टू गो अराउंड द सन, सबसे ज्यादा टाइम लगता है। द प्लैनेट विच इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, द प्लैनेट विच इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज वीनस। अच्छा, वीनस में अभी करंट अफेयर्स है, कैसे इसको लिंक करोगे वीनस को? यही हम बात कर रहे थे कि विल ट्राई टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस जहां पे जरूरी है। वीनस मिशन इंडिया का एक लॉन्च होने वाला है, जिसे आप शुक्रयान के नाम से जानते हो। अगर आपने ये नाम पहले नहीं सुना है तो आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। शुक्रयान ये इंडियन मिशन है जो कि आने वाले टाइम पे लॉन्च होगा, और इस पीएम मोदी ने इसका जिक्र भी किया व्हेन ही वाज अनाउंसिंग अबाउट द क्रू ऑफ गगनयान। ठीक है, तो आपको दो चीजें हैं, गगनयान का आप क्रू मेंबर्स याद रखिए, ठीक है, कब लॉन्च होने वाला है 2030, एंड 2035 का आप याद रखिए कि इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन भी लॉन्च होने की बात हो रही है। 2040 में ये कंप्लीटली फाइनली लॉन्च हो जाएगा। स्पेस स्टेशन 2035 की बात हो रही है। शुक्रयान आप याद रखिए, गगनयान के क्रू का नाम याद रखिए, और मोदी जी ने जब गगनयान के क्रू का लॉन्च किया, जब इनॉग्रेशन किया और बताया कि ये क्रू जाएंगे, तो उसी समय उन्होंने बात किया कि देखो भाई, एक शुक्रयान भी होगा जो हमारा मिशन होगा, एंड सरप्राइजिंगली द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ इज वीनस। ठीक है, तो ये चीज याद रखो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? वेरी सिंपल आंसर, देयर इज नो वन गोइंग टू आस्क कि पास्ट ईयर में एक बार आया था, अर्थ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ? वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सन इज अ स्टार। ठीक है, सन इज द आंसर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। अच्छा, ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में कैसे है, इसका इमेज भी इसलिए डाला गया है कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में इसीलिए है बिकॉज ऑफ आदित्य L1। लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स में आदित्य L1 आ जाता है, तो वो याद रखिए। अगर हम सन के लेयर्स के बारे में बात करें तो टोटल लेयर्स की बात करें तो देयर आर 6 लेयर्स। आप लोगों ने 3 सुना होगा कहीं, अगर किसी ने सुना भी होगा। 3 आर द इनर मोस्ट एंड 3 आर द आउटर मोस्ट। अब इसी के 3 में हम आउटर इनर बांट लेते हैं अलग से, लेकिन ये 3 और 3 ऐसे डिवीजन होता है। अब कैसे है वो देखो, कनेक्टिव जोन, रेडिएंट जोन, और इसमें एक जोन दिखाया नहीं गया, डेट इज द कन्वेक्शन जोन। ये रहा, नहीं इसमें नहीं है एक्चुअली। कनेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्शन जोन, ये 3 जोन बाहर के थे। उसके बाद कोर, कोरोना, क्रोमोस्फियर, ठीक है, एंड बीच का जो स्फीयर है इट इज द फोटोस्फीयर। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इट इज द कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। ठीक है, ये देखो बाहर कहीं दिख रहा है कोरोना, उसके बाद जाओगे फोटोस्फीयर, फिर कोरोना, फिर क्रोमोस्फीयर, फिर फोटोस्फीयर। ठीक है, एंड बीच का पार्ट इज द कोर, रेडिएट जोन एंड कनेक्टिव, कोरोना, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर। ऐसे याद रखो, कोरोना, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर। अंदर से बाहर की तरफ जाओ, कोरोना, क्रोमोस्फीयर एंड फोटोस्फीयर, उसके बाद कोर, कनेक्शन एंड रेडिएंट जोन, कोर, कनेक्शन एंड रेडिएंट जोन। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, तो इसको याद रखो, कोर, ये बीच का रेडिएंट जोन, ये वाला, फिर इसको बाहर से कनेक्ट कर रहा है तो इट इज अ कनेक्टिव जोन, एंड देन इट इज द फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। तो इस चीज को याद रखो, आउटर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऐसे आता है, तो प्लीज इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं। अच्छा, लिथोस्फीयर, फोटोस्फीयर कोई लगा ही नहीं सकता है। ठीक है, लिथोस्फीयर को अगर देखोगे तो फोटोस्फीयर तो चलो एक सेकंड के लिए अगर मान भी ले कोई लगा दे, बस लिथोस्फीयर तो हो ही नहीं सकता। लिथोस्फीयर तो अर्थ के सरफेस के लेयर्स है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजो, थर्मो, एक्सो, ये सब। ठीक है, तो वो तो लगा ही नहीं सकते। आप इस पर ध्यान रखो कि कोर और कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर, फिर उसके बाद क्रोमो एंड फोटोस्फीयर्स। तो ये कुछ लेयर्स का नाम याद रखो, इसमें आ सकते हैं क्वेश्चन बिकॉज ऑफ आदित्य L1। द अर्थ डिस्टेंस बिकम्स मिनिमम फ्रॉम द सन। देखो, 2 कॉन्सेप्ट होता है ज्योग्राफी में, एक होता है पेरीहिलियन, एक होता है एपीहिलियन। ठीक है, बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। पेरीहिलियन जो होता है वो नियरेस्ट टाइम होता है सन का, जब अर्थ सन से सबसे ज्यादा पास में होता है ना।
पेरीहीलियन, पेरी हो जाए, पेरीहीलियन मतलब सबसे नियरेस्ट टू द सन जिस टाइम पे होगा उसे हम कहेंगे पेरीहीलियन, और जब दूर होगा तो उसे कहेंगे एपीहीलियन। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। देखो 91.4 मिलियन माइल्स एंड 94.5, 3 पॉइंट समथिंग मिलियन माइल्स का डिफरेंस आ जाता है। तो एपीहीलियन इज द जुलाई जहां पर सन बहुत ज़्यादा दूर रहेगा, जनवरी इज द टाइम जहां पे पेरीहीलियन बहुत पास में रहेगा। अब जनवरी का फर्स्ट वीक हो सकता है, बट 3 जनवरी हम एक डिमार्केटेड डेट मानते हैं, और जुलाई वाला जो डेट है वो इधर आ जाएगा एपीहीलियन में, ठीक है। तो पेरीहीलियन याद रखना, जनवरी इज टू द पेरीहीलियन विच इज द नियरेस्ट टाइम टू द सन, एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज जुलाई, एपीहीलियन, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पता रखना। आते हैं क्वेश्चन, कंफ्यूज करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। बहुत लोग जियोइड बोलेंगे, बहुत लोग ऑब्लेट स्फीयर बोलेंगे, बट जियोइड एनसीईआरटी मेंशन करता है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर जियोइड। मुझे दोनों आंसर मिले थे, ऑब्लेट स्फीयर एंड जियोइड, बट एनसीईआरटी जियोइड स्पेशल मेंशन करता है। फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 12th, ठीक है, उसको पढ़िएगा, उसमें लिखा भी हुआ है। ऑन विच डेट, 11th क्लास, ऑन विच डेट इज द अर्थ इज पेरीहीलियन, अभी देखा था एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन, ये दो चीजें देखी थी। तो अर्थ पे पेरीहीलियन कब होगा ये बताओ। तो 3 जनवरी में जस्ट देखा है, जुलाई वाला टाइम कब डालेंगे, एपीहीलियन में डालेंगे। द अर्थ इज एन एपीहीलियन ऑन, तो एपीहीलियन 4 जुलाई, आंसर खत्म, आगे बढ़ो। तो ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, एपीहीलियन पेरीहीलियन, और 2 क्वेश्चन आते हैं तो दोनों सही करोगे, और अगर दोनों आ जाते हैं तो दोनों गलत करोगे। अगर आपको नहीं पता होगा कि एपीहीलियन और पेरीहीलियन किस चिड़िया का नाम है, तो ये दोनों पता रखो, बेनिफिट पे रहोगे। नाउ मैच द फॉलोइंग, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ बातें करेंगे इसमें भी हम कि क्या क्या चीजें हैं। पहले तो मैच करा लेते हैं, चलिए चलो, जो सबसे आसान आता है ना वो सबसे पहले किया करो, ठीक है। 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होता है, इक्वेटर है ना, इक्वेटर की लाइन है। बट अब इसमें क्या है कि आपको इक्वेटर की लाइन दे नहीं रखी है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन चेक करते हैं, तो प्राइम मेरिडियन इज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, है ना, प्राइम मेरिडियन वही तो होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड की बात नहीं हो रही है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड ऐसे पढ़ते थे ना क्लास 9th में, लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो लाइन खड़ी होती है तो वो लॉन्गिट्यूड हो गया। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ए का 3, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो चला गया। जब पॉलिटी किया था याद है, ऐसे ही कर रहे थे कि ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब है आर्कटिक सर्कल, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 2 चीज है। अच्छा एक बात बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर से ऊपर होता है तो नॉर्थ वाला होगा, साउथ तो हो ही नहीं सकता। जब अर्थ बनाते हो ऐसे तो ये होता है 0 डिग्री, ठीक है, ऊपर से मेरिडियन है ना 0 डिग्री, फिर ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो कैंसर इज फॉर द नॉर्थ, तो बी का 2 एंड कैप्रिकॉर्न इज फॉर द साउथ, सेम चीज देख लो कहां पर है, तो ई का 4, दिस इज योर आंसर। अच्छा अब कौन कौन सा बच गया, आर्कटिक सर्कल D5 66.5 वैसे ही चला जाता है, ये रहा आर्कटिक सर्कल आपका, और ये रहा अंटार्कटिक सर्कल आपका। आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। तो ये 2 बातें याद रखना, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ। दिस इज कैप्रिकॉर्न, दिस इज कैंसर, दिस इज इक्वेटर, दिस इज आर्कटिक एंड दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। एटलीस्ट इतना तो पता रखो, ये फ्री के मार्क्स है, ये तुम्हें कोई नहीं दे रहा। इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो सीधा पास होता है बेसिकली। अच्छा इतना समझ में आ गया, एंड देन वी कैन प्रोसीड टू द इंटरनेशनल डेट लाइन। आई वांट टू डिस्कस दैट पार्ट। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करो तो अर्थ का मैप जब देखोगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ऐसे जिगजॉग जिगजैग जाएगा, आगे जिगजैग जिगजैग पास होता है, ठीक है। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, एक बार DULLB में क्वेश्चन आया हुआ, इंटरनेशनल डेट लाइन की नियरेस्ट क्या है। बहुत लोग ग्रीनविच मेरिडियन मारते हैं, आंसर इसका ग्रीनविच नहीं है, इसका आंसर है बेरिंग स्ट्रेट, या फिर बेरिंग सी नियर अलास्का। और अलास्का किसकी टेरिटरी है, USA की। और बेरिंग स्ट्रेट किसके बीच में, स्ट्रेट की बात कर रहे थे, बेरिंग स्ट्रेट इज बिटवीन US एंड रशिया, या फिर अलास्का और रशिया, या फिर नॉर्थ अमेरिका और एशिया। ये तीनों ऑप्शन में आ सकता है, मतलब दोनों तीनों में कोई सा भी एक आ जाएगा, और तीनों ही ऑप्शन
सही हैं, जो कि बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट बेसिकली एक नैरो पैसेज होता है जो दो लैंडमार्क्स को यहाँ पर कनेक्ट करता है, ये दो वाटर बॉडीज को अलग अलग इसमें करेगा। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेट। एंड तो ये थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखना कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंटरनेशनल डेटलाइन, आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, सी फ्लोर स्प्रेड होगा तो कॉन्टिनेंट्स बनेंगे। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स है, जो फॉल्ट्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो दो लैंडमार्क्स के बीच में जो फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं उसके कारण भी होता है। पोल वेंडरिंग के कारण कुछ नहीं होता। तो 13th का आंसर हो गया बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज अ ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। देखो बेसिकली ये जो रीजन है ना वो अफ्रीका के पास पड़ेगा आपको, गल्फ ऑफ गिनिया, नल आइलैंड। ठीक है, गिनी बसाओ, गिनी उजारो, ये दो कंट्रीज है। गिनी उजारो नहीं है, गिनी है, गल्फ ऑफ गिनी है। तो वही जो गल्फ में है एक आइलैंड पड़ता है नल आइलैंड, तो याद रख सकते हो 0 इज नल एंड वॉइड, तो डेट इज वाई नल आइलैंड, तो वहां से भी याद रख सकते हो। इसका आंसर अगर लंडन ऑब्जर्वेटरी भी अगर आपको कहीं मिले तो वो भी सही है। 15 हाउ मेनी किलोमीटर्स रिप्रेजेंटेड बाई 1 डिग्री, इट्स 111 किलोमीटर। क्लास 9th की बेसिक ज्योग्राफी है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इट्स मर्क्यूरी, इट इज द आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ों को ध्यान रखो, ये बेसिक बातें हैं। ड्रैकन्सबर्ग इज अ माउंटेन ऑफ, बेसिकली देखो ड्रैकन्सबर्ग जो माउंटेन है वो साउथ अफ्रीका में है, अफ्रीका की माउंटेन है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। ड्रैकन्सबर्ग प्लेन्स भी है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स भी है। तो ड्रैकन्सबर्ग बेसिकली साउथ अफ्रीका के लिसोथो में, ठीक है, लिसोथो एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पर ये चीज पड़ती है। मोना लुआ इज एन एक्टिव वोल्केनो ऑफ हवाई। मोना लुआ इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो करेंटली, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है मोना लुआ, इट्स इन हवाई। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, याद रखो। विच इंडियन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर राइनोसोरस पॉपुलेशन, आंख बंद करके भी लगाओगे फिर भी आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क, असम लगा दोगे ट्रिक। इसकी क्या खास बात है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट इस बार न्यूज में भी था। जो टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था 1972 में, और उसी का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट भी आया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। कल भी कुछ करंट अफेयर्स में आया था रिलेटेड टू जिम कॉर्बेट। एक इस साल एक और न्यूज में है, दैट इज द हेमिस नेशनल पार्क। इट इज फेमस फॉर स्नो लियोपार्ड एंड इट्स इन लद्दाख। ठीक है, ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है, प्लस स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो इंडिया की जो बात की जाती है साउथ बटन, वो याद रखना, वो कभी कभार आ जाता है, अंडमान में। द हाइएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। देखो ओशन में जो सैलिनिटी होती है वो 35 पार्ट्स पर 1000, हाँ मतलब पर 1000 में 35 है, तो उससे ज्यादा है तो सैलिनिटी है। इट्स लेक वैन इज द आंसर। लेक वैन जो है वो तुर्की में या टर्की कह लो, ये हाईएस्ट सैलाइन लेक है। रेड डेड सी मत मार देना, डेड सी इज नॉट लेक। ठीक है, बलाकाश लेक और बैकाल भी नहीं है, लेक वैन है, ये बात याद रखना। द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज लेक बैकाल। चलो दो देख लिया, एक सैलाइन देख लिया, एक डीपेस्ट देख लिया। इसमें एक क्रेटर है, क्रेटर बेसिकली इंडिया में भी एक लेक है जो कि क्रेटर से बनता है, इट इज महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, क्रेटर लेक इंडिया में इकलौता है, महाराष्ट्र में, पढ़िएगा उसके बारे में। क्रेटर इज बेसिकली कि जब एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स गिरते हैं उसके कारण जो डिप्रेशन क्रिएट होता है उसमें पानी भर जाता है, दैट इज कॉल्ड लेक, और क्रेटर लेक उसको कहते हैं। ठीक है, न्यासा नहीं है कुछ, टंग नाइका, न्यासा भी एक लेक ही है लेकिन आपके लिए नहीं है। टंग नाइका इज द लॉन्गेस्ट लेक, लॉन्गेस्ट लेक इज टैंग नाइका, इस बात को याद रखना। लेक टैंग नाइका, इट्स इन अफ्रीका। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जायरे जाम्बिया के पास पड़ता है ये टैंग नाइका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज द लार्जेस्ट इन द एरिया, बेरिंग सी इज द लार्जेस्ट इन द एरिया, इसमें कोई बहस नहीं। ऑक्सबो लेक इज अ फीचर फॉर्म्ड बाई, देखो ऑक्सबो लेक क्या होता है, जब रिवर अपने यंग पोजीशन पे होती है, जब यंग होती है रिवर, मतलब जब पहाड़ से नीचे ही आ रही होती है, तो जैसे मान लो कि ये रिवर आ रही है, ठीक है, और उसके रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आती है। अब ये जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है तो सेडिमेंट का डिपॉजिट बनाई गई है। अब उस सेडिमेंट के डिपॉजिट के कारण एक ना अपना कोर्स चेंज करेगी, अब उसके ऊपर से तो निकलने नहीं लगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहां पर वो सेडिमेंट्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर रिवर अपना डायरेक्शन चेंज करेगी।
डायरेक्शन चेंज क्या ही करेगी, वो इस तरीके से एक फॉर्म कर लेती है और यहां पर एक लेक बन जाता है ये, दिस इज नोन एज द ऑक्सबो लेक। और ये कब होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन एक्शन ऑफ रिवर, रिवर ओरिजन एरोजन एट द मैच्योर स्टेज, जब रिवर अपने मैच्योर स्टेज पर रहेगी। इंडिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक कौन सा है, द लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक ऑफ इंडिया इज कन्वर ताल लेक, इट्स इन बिहार। ठीक है, ये कुछ चीजों को याद रखो कि कंवरताल लेक बिहार में है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, द लाइन ड्रॉन ओवर अ मैप जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग अ सिमिलर अमाउंट्स ऑफ सैलिनिटी। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, अगर ये गलत करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम है। आइसो हेलाइन, हेलाइन आइसो का मतलब होता है सिमिलर, हेलाइन मतलब सॉल्टी। वैसे ही देखते हैं, थर्म इज द टेम्परेचर, हाइट इज द वाटर, रेन बेसिकली, सेम अमाउंट ऑफ रेन तो आइसो हाइट, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर तो आइसो थर्म, और आइसो हेलाइन इज बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी की भी बात कर ली है लेक वैन में। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, लेक वोल्गा जो कि अफ्रीका की रिवर है। डेन्यूब भी इंपॉर्टेंट है, डेन्यूब भी इस साल न्यूज में थी। डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, और जाती कहां है डेन्यूब, ब्लैक सी में, और ये दोनों न्यूज में थे इस साल। लेक वोल्गा जो है वो रशिया की रिवर है, और ये रिवर ड्रोन करती है अपना रिवर कैस्पियन सी में, ठीक है, जो कि एशिया में। डेनाइपर ये आपको यूक्रेन की रिवर है, इसके ऊपर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है जो न्यूज में रहता है हमेशा, जैफरोजैजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। राइन रिवर जर्मनी की रिवर है, ठीक है, ये ऊपर तरफ जाती है, नॉर्थ सी में ड्रेन करती है। डेन्यूब की एक खास बात है कि ये 10 कंट्रीज से होकर गुजरती है, ठीक है, और रोमानिया बल्गारिया के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाएगी, रोमानिया और बल्गारिया के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाएगी डेन्यूब रिवर। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो, चारों ऑप्शन से, चारों न्यूज में थे इस साल। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इन विच सी द रिवर डॉन फ्लोज इनटू, डॉन कैस्पियन में जाती है, ठीक है, क्योंकि डॉन रिवर जो है आपको वो बेसिकली, सॉरी कैस्पियन नहीं, डॉन एजोव सी में जाती है, सी ऑफ एजोव में, ये भी रशिया की रिवर है। तो सी ऑफ अजोव, सी ऑफ मरमरा, ये ब्लैक सी के आसपास के रीजन है। गाजा स्ट्रिप लाइज इन द, गाजा स्ट्रिप इज इन न्यूज, है ना, गाजा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरेनियन के पास पड़ता है। एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर गाजा स्ट्रिप से ही, उसमें आया नहीं ये क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो। जॉर्डन रिवर जो न्यूज में रहती है अभी, जॉर्डन रिवर, ठीक है, इसके वेस्ट बैंक को कहते हैं वेस्ट बैंक एरिया, जो वेस्ट बैंक का अभी प्रॉब्लम चल रहा है वर्ल्ड में, तो वेस्ट बैंक इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये जो रीजन है वो जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न साइड पे, दैट्स व्हाई इट इज अ वेस्ट बैंक, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखो। रेड सी पता ही है आपको, डेड सी के बारे में भी पता ही, रेड सी भी न्यूज में था हाउथीज के कारण येमेन। 28, द वाटरफॉल विक्टोरिया इज एसोसिएटेड विद जाम्बेजी रिवर, नाइल रिवर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है। विक्टोरिया फॉल्स की बात करो तो ये आपको तंजानिया और मोजाम्बिक में जाके मिलेगा, केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक ऐसे 3 कंट्री बनते हैं, तंजानिया में आपको मिलेगा, एकदम नॉर्दर्न पार्ट पे जा करके। तो विक्टोरिया के बारे में याद रखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, अफ्रीका में पड़ता है। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स द ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड। अच्छा, जब लेक विक्टोरिया की बात होती है तो लेक एंजल फॉल्स के बारे में याद रखो, विक्टोरिया फॉल्स और एंजल फॉल्स, ये 2 फॉल्स याद रखो, जाम्बेजी रिवर हो गया इसका विक्टोरिया का, और एंजल फॉल्स की बात करोगे ये जाम्बिया जिम्बाब्वे के साइड पड़ता है वो, इसके बारे में विक्टोरिया फॉल्स। बट जब वेनेजुएला रिवर के बारे में बात करोगे आप, एंजल फॉल्स के बारे में, एंजल फॉल्स जो है वो आपको वेनेजुएला में पड़ेगा ऑन द रिवर करोनी, ये 2 बातें याद रखो। विच वाटर बॉडी सेपरेट्स ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड, बहुत आसान है, तस्मानिया सी। अच्छा, इसके सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, मैगलन को छोड़ करके, मैगलन आपके एग्जाम के लायक नहीं है, मैगलन स्ट्रेट भी है वैसे, मैगलन स्ट्रेट आपको पड़ेगा साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका के एकदम टिप पे जाओगे तो मिलेगा मैगलन। कुक स्ट्रेट जो है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में, ये म्यांमार की ही टेरिटरी है और इंडिया की तरफ से अंडमान निकोबार लगता है, नॉर्थ अंडमान।
ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की है, तो इसको वैसे भी याद रखो, ये कोई सेपरेशन वेपरेशन नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया कोरल रीफ से बंधा हुआ है, तो वहाँ पे साइड में चीज दिखेगा। 30 द ब्लू नाइल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बेसिकली देखो पूरा नाइल ही पढ़ा देते हैं, नाइल पूरा याद रहेगा तो क्लैरिटी रहेगी। नाइल 2 रिवर के मिल से बनती है, और ये बेसिकली खार्तूम एक जगह है जो कि साउथ सूडान की कैपिटल है, सूडान की कैपिटल है खार्तूम, वहाँ पर सूडान और साउथ सूडान जूबा नाम है उसकी कैपिटल की, खार्तूम में जाके मिलती है। खार्तूम से ये निकल जाती है आपको अफ्रीका इजिप्ट में, और वो मेडिटेरेनियन में ड्रेन करती है। बट ये 2 रिवर के मेल से बनती है, एक है वाइट नाइल और एक है ब्लू नाइल, ठीक है, सॉरी, हाँ, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। वाइट नाइल जो है बेसिकली लेक विक्टोरिया से निकलती है, और ब्लू नाइल जो है वो ताना से निकलती है। लेक ताना 2 लेक्स हैं बेसिकली, इथियोपिया की लेक है वो, लेक विक्टोरिया एंड लेक ताना। तो करेंटली यहाँ पर ब्लू नाइल के लिए आंसर आया तो लेक ताना, वाइट नाइल के लिए वाइट नाइल के लिए पूछा जाए तो लेक विक्टोरिया। ये 2 बातें याद रखो, खार्तूम भी याद रखो कि कहाँ वो मिलती है, और वो कैपिटल भी है। एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन समर सीजन, ऑब्वियस है, पार्टिकल्स के कारण। द बैंड ऑफ एयर कॉल्ड जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन अपर ट्रोपोस्फेयर, लोअर पे नहीं मिलेगा। विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कितने लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजो, थर्मो, एक्सो एंड आयनोस्फेयर जिसको बोलते हो। तो ट्रोपोस्फेयर इज द आंसर, जो इज द लोएस्ट। ओजोनोस्फेयर भी है। पासेज और उनके स्टेट्स आपको याद होने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घूमते फिरते कि बता दो क्या है आंसर इसका, पासेज और उसके। चलो देखते हैं। सबसे पहले जोजिला पास, जोजिला पास इज इन जम्मू कश्मीर। बारालाचला पास इज इन सिक्किम। जिलिपला पास हिमाचल प्रदेश। नीति पास उत्तराखंड। दिस इज द आंसर। एक्चुअली देयर इज अ एरर, बारालाचला पास शुड बी इन उत्तराखंड, बारालाचला पास इज इन उत्तराखंड, इसके ऑप्शंस गलत हैं। You can just go for it. Baralachla Pass in Uttarakhand, Jojila in Sikkim, Jilipla and Niti Pass. चलिए, next, which of the following longitude determines the Indian Standard Time? देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो है 82.5 डिग्री ईस्ट पे, ये तो क्लियर, बट ये पास कहाँ से होती है? मिर्जापुर, इलाहाबाद, जो प्रयागराज है, एंड यूपी। ये तो हो गया एग्जैक्ट लोकेशन, बट अगर आप देखो दिस पॉइंट इज द मिर्जापुर पॉइंट, बट इसको देखो कौन कौन से स्टेट से पास होके आ रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, 5 स्टेट्स हैं, इन 5 का नाम याद रखना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। 36 इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड द इंडियाज एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड इज द आंसर। Which is the highest peak in Andaman? अंडमान की हाईएस्ट पीक है सियाडल पीक। Which of the following river flows through Rift Valley? नर्मदा। An important river of Indian desert, लूनी। अच्छा, लूनी का एक और नाम है, it is an inland river of India. inland river is basically आपको वो रिवर्स होती हैं जो कि किसी वाटर बॉडी में ड्रेन नहीं करती, बल्कि लैंड में ही खत्म हो जाती है। सरस्वती मत मार्क कर देना अगर आया ऑप्शन में तो। विच क्रॉप इज अफिलिएटेड बाय द डिजीज कॉल्ड रेड रूट? सुगर केन। जो अच्छा, इस बार 23 प्रोडक्ट्स में मिलेट्स भी वो एमएसपी दी है सरकार ने, तो याद रखना ये। झूम द टाइप ऑफ कल्टीवेशन है बेसिकली, ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन जिसको बोलते हो। येलो रिवॉल्यूशन इज समवट रिलेटेड टू द ऑयल सीड्स, ठीक है, थोड़ा दिमाग कम लगाइएगा, सनफ्लावर मत लगाइएगा उसमें। क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये एक बिहार जे में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, फ्लावर बर्ड मैंने वो रेफरेंस के लिए डाल दिया कि अगर किसी को देखना हो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो बहुत नॉर्मली हर जगह पूछ दिया जाता है। फ्लावर बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन, इट इज इन गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड, ठीक है, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी एक है यहाँ पर उत्तराखंड में ही, जिसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 44-45 क्वेश्चंस, जो थोड़े बहुत लेवल पे इम्पॉर्टेंट हैं। हर सेक्टर को कवर किया गया है इसमें, चाहे वो आप ये ले लो, आप इंडियन ज्योग्राफी ले लो, नेशनल पार्क ले लो, पासेस ले लो, सब चीज़ को मैंने थोड़ा टच किया है ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया रहे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना,
ताकि अगर आए एग्जाम में तो कर लो, पासेस को और अच्छे से कर लो, एनसीईआरटीज उठाओ, पासेस को वहाँ से कर लो, उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जो चीज़ें न्यूज़ में थी नहीं थी, किस हिसाब से थी, किस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो, वो मैंने पूरी कोशिश की। ग्लोबल टाइगर अलायंसेस भी पढ़ लेना, ये एनवायरनमेंट का पार्ट है और ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो मेरी तरफ से ज्योग्राफी में इतना ही, बट हाँ इनको अच्छे से करिए, ओवरऑल टॉपिक को ख़त्म करिए, एग्जाम में टाइम कम है, बट हाँ इतना कर लोगे तो 2-4 नंबर तो 2-4 क्वेश्चन तो आराम से सही हो जाएंगे अगर आते हैं तो। राइट, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।